Hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. Today we are going to start the new chapter, that is work, energy and power. So we will be talking about the concepts of work. क्या वर्क फिजिक्स में है और क्या नहीं, मतलब किन चीज़ों को या फिर किन एक्टिविटीज़ को वर्क माना जाता है और किन एक्टिविटीज़ को वर्क नहीं माना जाता, ये हम लोग देखेंगे. पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, एंड ये एनर्जी, पावर और वर्क किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. वी आर गोइंग टू सी सच टाइप ऑफ कंसेप्ट्स एंड देयर इंटरकनेक्शंस इन दिस टोटल चैप्टर. ठीक है, तो ये हमारा है 6th चैप्टर, राइट, एंड वी हैव स्टडी टिल द 5th चैप्टर. तो देखिए आज का मेन टॉपिक है वर्क, राइट. इस लेक्चर के अंदर हम लोग वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, और किस तरीके से वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं इन फिजिक्स, किस तरीके से वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, एंड द डिफरेंट कंडीशंस रिलेटेड टू दैट. सो बेसिकली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्क टुडे, राइट, एंड this topic is important for the school examination as well as the Olympiad. So if you are the one who is like working or studying for the school examination, or if you are the one who is going towards their journey for the Olympiad, or either you are the one who just watch these video lectures for the knowledge, so that is so good. You can definitely going to get the quality knowledge you deserve, right? And that is why, to simplify all the concepts, we have taken this effort so that we can talk up to you about these concepts and make you understand these concepts. That is the main thing that what we have started. Now is the next thing, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. What you need to do is, you need to write TTB009 in the search box of the Telegram app. So if you do so, class 9 के लिए drop down list में channel appear हो जाएगा, and then you can definitely join the channel. You can access all the DPPs and study material along with the notifications of the video classes that is going to be like coming soon, right? And now see, this is the team which is going to help you a lot, as we are very much doing a group, like you can say a very much hard work for you all, and we are trying to put our efforts in getting you the quality education, right? That is the most important thing. So basically we have unified all the things, so we are like working for the Olympiads as well as the school examination, and that is why we are going to work for all the questions and which are going to come in your school examination as well as the Olympiads. And these video lectures are the result of the efforts we are going to put, right? And the thing is that these video lectures are free for everyone. So if you are the one who is watching these video lectures, you need to make sure that you share these video lectures to everybody, so that the person who is not able to afford such quality education can definitely watch these video lectures and definitely crack his or her career goals according to them. And that is the good thing, and that is for the good cause also, right? Now in accordance to that, we have also provided you some packages for definitely to help you in your journey. The persons which are not that much disciplined, ठीक है, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसिप्लिन नहीं होते हैं, जिन्हें लाइक पढ़ना उनको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करवाना होता है. जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लाइक 1 month बिफोर, 2 month बिफोर, राइट. बट इफ यू डू द थिंग लाइक फॉर द ईयर लॉन्ग जर्नी एंड स्टेप बाय स्टेप, one chapter at a time, if you do that, that would be so much helpful, and consistency does matter, right? And that is why we have provided these packages for you all. So to access those packages, you need to go on the website www.talkingtextbooks.in. So if you go on that website, you are going to get such type of packages over there for every class. So this is the full package, right? Full package includes all the necessary things, like you will be getting study material, you will be getting the video classes, you will be getting the homework submission feature where you have to do the homework and you have to submit it to us, right? You will be getting the bi-weekly quizzes and the periodic test paper. So basically, if a person is not having any type of guide about the Olympiads, how to crack them, how to prepare for them, how to study for them, right, and even for the school examination. So basically, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे ऐसा guidance नहीं मिल रहा है, and somebody who is not as much as consistent than the others, because
कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन के कुछ पहले ही स्टडी करते हैं. सो बेसिकली अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द ओलंपियाड्स इन अ कंसिस्टेंट वे, ईयर लॉन्ग जर्नी में अगर आप इंक्लूड होना चाहते हैं, देन यू कैन जॉइन द फुल पैकेज, as you will be getting the bi-weekly quizzes and periodic test papers time by time. You are going to get that, right? You need to bi-weekly quizzes mein you need to attempt the quizzes twice a week, and you have to do that, right? Then you are going to give the periodic test papers after 3 weeks or 2 weeks regularly, so that would be taken as the consistent effort by you, right? You need to study, you need to do the homework, so basically that can create a consistent manner in which you can study. So you do not have to like put your efforts like only in the last month of the exam. That is why it is so cool if you join this you can say package, right? And if you just want the test series, then you can join the test series also. Periodic test papers, recorded live classes, bi-weekly quizzes. These 3 things are included in the test series. And if you want to buy them, then you can use my code CYLIVE to get a 30% discount. And if you are the one who is want to know more about these packages, then you can definitely going to call us on that number 919549041111. You can call us on the number and you can get all your queries resolved. Alright, and that is the thing, you need to know more about these packages. But the thing is ki you need to be consistent throughout the year so that your efforts, your hard work will pay off in the final examination, right? Now let's get started. So basically we are going to study today work. The chapter is chapter 6, work, energy, power. We are going to study all these 3 concepts in this chapter, and we are going to talk about the first concept, work, today itself in this lecture, right? Now you can see here this person is trying to pushing the wall, right? So ये हमारे लिए according to us, right? According to us this is work. Definitely it is work, because this person is going to exhausted after doing this. His energy will be like low, all energy will be like spent, right? But does this type of work count in the physics? Do we say work in terms of physics? Do we say? Let's check that out. But before that, let's promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is the most thing you should do. Now you need to increase your revising time 1 hour a day, right? You need to do that. So revise more often, right? Revise more and more. That would be so cool for you, right? Now let's get started. In this lecture, we are going to talk about work, uska definition, uska formula, uske types. Alright, you're going to get the work calculation by the graph also. Force displacement का graph अगर आपको provide कर दिया जाए, so how you are going to calculate the work from that graph. So we are talking about such things, right? Prerequisites are the basic algebra and the force. तो ये तो हमें आप पता ही है, right? तो basically we are all set to study work, right? So let's get started. तो देखिए, reading a book is a work for us. मुझे तो ऐसा लगता है that yes, because when we read, we involve in the reading process. हम पूरी तरीके से involve हो जाते हैं उस पूरे के पूरे work में, reading में, right? So basically हम involve हो जाते हैं इस पूरी activity में, and then we are like mentally हम अपने आप को exhaust कर रहे होते हैं, because after some time we feel like we are very tired enough, right? So basically reading हमारे लिए एक काम के तरीके से हुआ, राइट? सो बेसिकली ये जो रीडिंग है जो हमने की, या फिर कोई भी बुक हम पढ़ते हैं, स्टडिंग मान लो 3-4 घंटे पढ़ते ही हम लोग को नींद आने लगती है, या फिर कई बार तो आधे घंटे में ही नींद आने लगती है. सो बेसिकली हम थक जाते हैं, तभी तो नींद आने लगती है. इतना सा काम, मतलब ये पढ़ाई भी हमारे लिए एक तरीके से काम हुई है ना. वहीं पर अगर हम बात करें कुकिंग फूड, ये हमारे लिए काम है. वी हैव टू मूव अराउंड, वी हैव टू कट ऑल द नेसेसरी थिंग्स, राइट? वी हैव टू कुक, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, राइट? हमें हीट चाहिए होती है कुक करने के लिए. ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क वी डू, दैट इंक्लूडेड इन द कुकिंग. सो बेसिकली कुकिंग योर फूड इज अ वर्क फॉर अस. हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, बिकॉज आफ्टर सम टाइम वी फील वेरी टायर्ड, राइट? फूड, जैसे ही फूड हमने बनाया, सो वी फील टायर्ड, राइट? लिटिल बिट ऑफ एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है हमारी, एंड देन वी ईट द फूड टू गेट दैट एनर्जी again, right? So basically cooking food is, we can say, considered in the work for us. Now let's talk about pushing a wall again. Now pushing this wall, definitely it is going to be work for us.
That is why, because after doing this, this person who is pushing the wall become totally exhausted. उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाती है, राइट? उसको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं. Now he needs something else to regain his energy, right? तो बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ हम लोग देख रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है, हर कोई इन्हें करता है, राइट? नॉट pushing the wall, but still the activities around us, like even going from one room to another, is a work for us. Walking is a work for us. So basically all the activity, either we are involving physically or mentally, that is work for us, right? So basically in daily life the term work means any kind of mental and physical activity. किसी भी तरीके की मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी अगर हम लोग कर रहे होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हम काम कर रहे होते हैं, राइट? राइटिंग फॉर अस इज अ वर्क, राइट? तो बेसिकली ये जो चीज़ें हमारे लिए वर्क हैं, क्या यही बातें फिजिक्स में भी वर्क मानी जाएंगी? लेट्स सी. सो देखिए, in physics work is said to be done when body displaces due to the application of force. That is going to be work in physics. तो basically अगर आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स कोई बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, दैट मीन्स यू हैव डन सम वर्क. और अगर ऐसा हो, जस्ट लाइक रीडिंग अ बुक, सो रीडिंग अ बुक में आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू होल्ड द बुक, यू हैव टू सिट अराउंड एंड यू हैव टू रीड इट, राइट? बट वो चीज़ अब क्योंकि यू आर नॉट इवन पुटिंग अ फोर्स, तो आप अपना फोर्स नहीं लगा रहे हैं, राइट? यू आर नॉट मूविंग दैट ऑब्जेक्ट, सो बेसिकली यू आर नॉट डूइंग अ वर्क इन फिजिक्स. लिटरली यू आर नॉट डूइंग. कुकिंग, पुशिंग अ वॉल, ठीक है, रीडिंग, जो हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी थी, जो हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मली वर्क हम जिसे कहते हैं, फिजिक्स में उसे वर्क नहीं माना जाता. वर्क उसी को माना जाता है जहाँ पर आप फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, पोजीशन चेंज कर लेती है. वी कॉल दैट सम वर्क इज बीइंग डन और डन, राइट? सो नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. सो देखिए, दिस पर्सन इज पुशिंग द ब्लॉक, is trying to pushing the block, but he is not able to do so. ब्लॉक हिल नहीं रहा है, राइट? यहाँ पे आप देखो, ये जो पर्सन है ये ट्राई कर रहा है इसे हिलाने का, ये अपनी एनर्जी लगा रहा है, बट फिर भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है. नाउ दिस ब्लॉक इज नॉट मूविंग एट ऑल, सो दैट इज वाई ये पर्सन कोई काम नहीं कर रहा है फिजिक्स की टर्म्स में. फिजिक्स की टर्म्स में वी आर सेइंग दैट दिस पर्सन इज डूइंग नो वर्क, ऑलराइट? तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है? ये हालांकि अपनी एनर्जी को इनपुट दे रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ठीक है, बेचारे की एनर्जी खत्म हो रही है, बट फिर भी उसे यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ये काम कर रहा है. बट अगर ये इतना फोर्स लगा दे कि ये बॉडी चली जाए, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, देन वी कॉल इट दैट सम वर्क हैज बीन डन, एंड अब हम बोल सकते हैं दैट यस, वर्क इज बीइंग डन, ठीक है? ये हमने कब बोला? जब बॉडी डिस्प्लेस हुई. जब तक बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है तब तक हम बोलेंगे कोई काम नहीं हुआ. सो पुशिंग अ वॉल में क्योंकि दीवार हिलती ही नहीं है, दीवार अपनी पोजीशन पे वैसे का वैसे रहती है, सो वी कॉल इट नो वर्क. कोई वर्क नहीं हुआ. तुम अपनी एनर्जी भले ही पूरी तरह फिनिश कर दो, अपनी एनर्जी सारी खत्म कर दो, फिर भी पुशिंग अ वॉल इज नॉट गोइंग टू बी काउंटेड इन द वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, right? So basically if you are talking about work, you are going to say that there would be some force, there would be some displacement because of that force, right? And then only you are going to say that some work is being done, right? So let's talk about work in physics. So see, in physics work is said to be done if body is displaced due to the application of force. अगर body displace होती है किसी force के application की वजह से, फोर्स अप्लाई करने पर कोई बॉडी अगर डिस्प्लेस होती है, अपनी जगह से हिल जाती है, अपना पोजीशन चेंज करती है, देन ओनली वर्क इज बीइंग डन और वर्क इज डन. इसकी कुछ कंडीशंस जो कि ट्रू होने चाहिए, कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क डन आर, देयर आर 2 कंडीशंस. नंबर 1, अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी. पहली बात, फोर्स शुड बी देयर, फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है? ये उसकी पहली कंडीशन है, ठीक है? देयर हैज टू बी सम फोर्स एंड दैट फोर्स शुड बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी. अब देखिए सेकंड कंडीशन, द बॉडी मस्ट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. अगर वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, अगर वो नहीं हिलती, अगर वो अपनी जगह से नहीं हिलती, अपना पोजीशन चेंज नहीं करती, अगर वो जहाँ थी वो वहीं रहती है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, दैट मीन्स कोई काम नहीं हुआ है. सो देयर आर 2 थिंग्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड. 2 कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए. नंबर 1,
force should be there, force should be applied. Number 2, there has to be the displacement of the object जिसके ऊपर force लगाया जा रहा है. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे जिसमें हम वर्क को डिफाइन करेंगे. वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट if the force applied causes a displacement in any direction other than 90% of the body or object. अगर आप किसी भी बॉडी पर लेट्स से बहुत बड़ा बॉक्स है एंड यू आर पुशिंग दैट, यू आर ट्राइंग टू पुशिंग दैट बॉक्स, अगर ये जो बॉक्स है ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाए, ठीक है, आइदर इन दैट डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, बट इट हैज टू बी द डायरेक्शन, you can say not on the 90 degree of the force you are going to apply. Let me tell you with an example here. मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ. So देखिए, if you want कि भाई वर्क हो, ठीक है, if you want वर्क हो तो क्या होगा, किस वजह से आप बोल पाएंगे कि वर्क हो रहा है. तो देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है लेट्स से, ठीक है, आप इसे इस डायरेक्शन में पुश करना चाह रहे हैं, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. हो सकता है ये बॉडी सीधे जाने की बजाय इट विल गो लाइक दिस, और सीधे जाने के बजाय इट विल गो लाइक दिस. सो दीज कैन बी टेकन एज द, यू कैन से दैट कैन बी टेकन एज अ वर्क. बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, ठीक है, वो सही है. बट अगर बॉडी ऊपर चले जाए और नीचे चले जाए, दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स. बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, मतलब आप तो बॉडी को धक्का ऐसे मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, तो आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके 90 डिग्री में अगर बॉडी चली जाती है, बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो हम वहां नहीं बोलेंगे फोर्स, राइट. वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे कि वर्क वहां पर हुआ है. हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, किसी भी डायरेक्शन में चली जाए बॉडी, किसी भी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, बस 90 डिग्री वाले डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए फोर्स से, ठीक है. तो ये चीज हम लोग को यहाँ समझनी है, दैट फोर्स जो हम लोगों ने अप्लाई किया है वो बॉडी को फोर्स के 90 डिग्री में डिस्प्लेसमेंट नहीं करवाना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो हम वर्क नहीं मानेंगे, लेकिन अगर किसी और डायरेक्शन में अदर देन द 90 डिग्री वाले डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो जाती है बॉडी, देन ओनली वी कैन से दैट वर्क इज बीइंग डन और वर्क हैज बीन डन. ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है. हालांकि तुम लोग बोलोगे कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वो एक वेक्टर है, फिर भी वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होता है. क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट, इज गोइंग टू बी वर्क. दैट इज व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, अब देखिए example, work is done when a box is dragged on the floor from one position to another. ठीक है, अगर आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आप एक बक्से को खिसकाते हुए लेकर जा रहे हो, आप उसको धक्का लगाते हुए लेकर जा रहे हो, सो यू आर मेकिंग इट डिस्प्लेस, राइट. सो अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाती है मतलब वर्क हुआ है. ठीक है, इन दिस केस force is on the box to drag it on the floor and the box moves through a certain distance between one position to another. यहाँ पर क्योंकि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, राइट, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. अगर ये बॉडी यहाँ पर इनिशियली थी और अब ये यहाँ पर पहुंच जाती है, ठीक है, लेट्स से ये बॉडी यहाँ पहुंच गई है, सो इनिशियल से फाइनल पोजीशन देयर हैज टू बी सम displacement, there has to be some position change, right. अगर ऐसा होता है because of this force, then only you can say the force is done. ठीक है, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, इसकी डेफिनेशन, that is important here. Alright, now let's move ahead. हमने अभी डेफिनेशन देखी है फोर्स की, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजरमेंट. हम फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग अ फॉर्मूला. नाउ सी, force is measured by the product of force and work is measured by the product of force and the displacement in the direction of force. So basically अगर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको आप डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको वर्क पता चल जाएगा.
So you can calculate the work by just multiplying the force with the displacement, and that has to be in the direction of force. So basically force का formula हो गया work is equals to work का formula हो गया work is equals to force into displacement in the direction of force. We can say that. तो देखिए this is the displacement, this is the force, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया, बट फोर्स कैन बी इन द सम डायरेक्शन, किसी एक एंगल पे भी लग सकता है, डेफिनेट सी बात है. मे बी आप किसी बॉक्स को ड्रैग करने के लिए रेदर देन आप उसको हॉरिजॉन्टली खींच रहे हो, आप उसको किसी एक एंगल पे भी खींच सकते हो, डेफिनेट सी बात है, यू कैन डू दैट ना. अभी जैसे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट्स से you want to push that object in that direction, आप इसे इस डायरेक्शन में पुश करना चाहते हैं, आप इस बॉडी को डिस्प्लेस करना चाहते हैं इन दिस डायरेक्शन, राइट. लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप इसे हॉरिजॉन्टली खींचने के बजाय आप इसे कुछ ऐसे फोर्स से खींच रहे हैं, फिर भी ये बॉडी इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है. सो देयर इज सम एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन ही केस हो, हम किसी एंगल पे भी फोर्स लगा सकते हैं और हमारा काम बन सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, राइट. सो इन दैट केस वी इंक्लूड अ थीटा हियर, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू से W is equals to force multiplied by D cos theta, that is displacement in the direction of force. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो भी हम क्या कंसीडर करेंगे, हम D cos theta कंसीडर करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो D cos theta है that is the displacement in the direction of force. So we are going to consider this D cos theta. फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हम उसकी बात करेंगे, राइट. एंड दैट इज व्हाई देयर हैज टू बी सम एंगल. अगर ये जो D है यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट, राइट, एंड द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो इन दैट केस, ठीक है, अगर आप किसी एंगल पे खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी इज लाइक कमिंग इन द हॉरिजॉन्टल और डिस्प्लेसिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो भी हम डिस्प्लेसमेंट का हम लोग कंपोनेंट लेंगे, दैट इज D cos theta. ठीक है, सो देयर हैज टू बी डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, वहीं पर दूसरा केस ऑपोजिट जो है वो कुछ इस तरीके से है. अगर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन का अगर हम कंपोनेंट लें, तो यानी कि वर्क डन को बोला जा सकता है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो इफ यू वांट टू टॉक अबाउट कि भाई फोर्स तो लग रहा है किसी और डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में, सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट और देखना चाहते हो कि फोर्स का कंपोनेंट उसी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो भी हम बोल सकते हैं दैट इट इज DF cos थीटा. मतलब फोर्स का कंपोनेंट है D के डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स का F cos थीटा, F cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो दोनों ही केसेस में दो जो वर्क डन है वो बिल्कुल सेम है, राइट. इफ यू टॉक अबाउट कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है वो कैलकुलेट करो, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो एंड देखो कि उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स है, यू कैन गोइंग टू गेट द वर्क. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले ही वर्क के सेम फॉर्मूला, दीज आर टू आर द सेम फॉर्मूला. ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसीलिए ये दोनों इक्वल हैं. डायरेक्शन के केस में दीज आर डिफरेंट, राइट, बट देयर इज नो डायरेक्शन एसोसिएटेड विद वर्क, सो दैट इज व्हाई दीज फॉर्मूलाज टोटली सिमिलर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी दिस वर्क, राइट. सो यू कैन नोट दिस डाउन द फॉर्मूला. चलिए अभी हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ स्पेशल केसेस जो हमारे वर्क डन में आपको जनरली मिलने वाले हैं, मतलब हम जनरल केसेस की बात कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल केसेस. यहाँ पर हम लोग देखते हैं केस 1. सो केस 1 इज when the force is in the direction of displacement, मतलब दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो, राइट. तो देखिए जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है,
जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तब हम कैसे बता सकते हैं? सो लेट्स से कि भाई ये है फोर्स की डायरेक्शन, इस तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। सो दोनों की दोनों जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। सो दीज टू आर इन द सेम डायरेक्शन। इन दोनों के बीच में अब जो थीटा है, जो एंगल है, दैट इज जीरो, राइट? सो यहाँ पर हम बोलेंगे हियर थीटा इज 0 डिग्री। अब क्योंकि यहाँ थीटा 0 हो गया तो वर्क डन कितना हो जाएगा? दैट इज एफ डी कॉस थीटा, यानी कि एफ डी cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री कितना होता है? 1, right? So you are going to get FD multiplied by 1 similar to FD. This is the force. This is the force. This is the work when you are going to do the force in the same direction as displacement. अगर ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो यू आर गोइंग टू गेट वर्क, लेकिन ये वर्क जो है वो मैक्सिमम वर्क है, ठीक है? दिस इज द मैक्सिमम वर्क यू कैन गेट आउट ऑफ द स्पेशल केसेस, ठीक है? सो दिस इज द मैक्सिमम वर्क हियर, ठीक है? तो इस केस में व्हेन एवर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम वर्क, ठीक है? अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं, केस सेकेंड की बात करते हैं, एंड दैट इज 90 डिग्री, ठीक है? तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. व्हाट हैपेंस व्हेन सच टाइप ऑफ कंडीशन अकर? जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर हो, दैट मीन्स लेट्स से इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है? लेट्स से आप लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? D इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट है, so there is 90 डिग्री बिटवीन दीज टू. D and F के बीच में जो थीटा होता है, that theta we talked about, so this theta is 90 डिग्री बिटवीन D and F, right? तो यहाँ पर क्या होगा? Here theta is 90 डिग्री, alright? और इसी की वजह से जो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो अगेन एफ डी कॉस थीटा, एफ डी cos 0 90 डिग्री, राइट? नॉट 0, दिस इज 90 डिग्री. नाउ cos 90 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट 0 वर्क. सो व्हेनेवर देयर इज अ कंडीशन कि भाई फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे हैं, ठीक है? इफ दैट कंडीशन अकर, सो यू आर गोइंग टू गेट 0 वर्क डन, ठीक है? यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वर्क डन, right? This is 0. You are going to get the maximum whenever the force and displacement are in the same direction, and when they are perpendicular you are going to get force work 0, ठीक है? अब आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, फिर हम केस थर्ड देखते हैं. राइट, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. केस थर्ड देखते हैं. केस थर्ड हम लोग के लिए अब की बार जो फोर्स है इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. तो इसका मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है. दैट मीन्स अगर मान लीजिए फोर्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि इधर डिस्प्लेसमेंट अगर हो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट टोटल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच अब कितना एंगल हो गया है? 180 डिग्री, राइट? तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री है, ऑलराइट? सो इधर जो है थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लेट्स पुट इट इनटू द फॉर्मूला. वर्क डन में हमें क्या मिल जाएगा? एफ डी कॉस 180 डिग्री, और हमें ये बात पता है कॉस 180 डिग्री कितना होता है? माइनस का 1. सो कॉस 180 डिग्री हमारे लिए कितना होगा? माइनस का 1. बिकॉज ऑफ दिस माइनस का 1 यू आर गोइंग टू गेट वर्क डन विच इज नेगेटिव विद अ माइनस साइन.
So this is the work done which is minimum. ठीक है, तो ये देखिए आपको मिनिमम वर्क डन मिला. आपको मिनिमम वर्क डन कब मिला? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, आपको जीरो वर्क डन कब मिलता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पर हो. और आपको मैक्सिमम वर्क कब मिलता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो. सो देयर आर 3 स्पेशल केसेस यू कैन गेट आउट ऑफ द वर्क. आपको पता चल जाएगा कब मैक्सिमम वर्क आपको मिलने वाला है, कब जीरो वर्क आपको मिलने वाला है और कब नेगेटिव यानी मिनिमम वर्क आपको मिलने वाला है. ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे सो यू आर गोइंग टू गेट मिनिमम वर्क. अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स परपेंडिकुलरली होंगे तो यू आर गोइंग टू गेट जीरो वर्क. एंड दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम वर्क. ठीक है, अब आप इसे भी नोट कर लीजिए. चलिए अब हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क डन. इसकी यूनिट्स क्या है, कैसी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट है यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम सेकेंड, राइट, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, राइट. सो यू आर गोइंग टू गेट सीजीएस सिस्टम हियर. यहाँ पर द यूनिट ऑफ वर्क डन इज डाइन इनटू सेंटीमीटर, दैट इज अर्ज. ठीक है, दैट इज सिमिलर टू दी यू कैन से एनर्जी. वर्क और एनर्जी दो ऐसी क्वांटिटीज है जिनका यूनिट सेम है. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू गेट अर्ज एज द डाइन इनटू सेंटीमीटर. आप ये देखिए डाइन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बिकॉज अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता चल गया है, राइट. वर्क डन का जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो फोर्स यहाँ पे, फोर्स का सीजीएस यूनिट यहाँ पे क्या हुआ? डाइन, जो कि हमें पहले से पता है. और डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. दैट मीन्स डाइन इनटू सेंटीमीटर इज गोइंग टू गिव यू द अर्ज, दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क. ठीक है, इसका डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें कि भाई अगर 1 डाइन का फोर्स लगाया जाए एंड द बॉडी विल मूव अप टू दी 1 सेंटीमीटर, देन द फोर्स इज ऑफ 1 अर्ग. ठीक है, नाउ सी F इज इक्वल्स टू 1 डाइन. आप 1 डाइन का फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 सेंटीमीटर का बॉडी के अंदर, देन यू कैन से दैट वर्क इज ऑफ 1 अर्ग, राइट. If 1 dyne force is applied on a body and displacement in the body is 1 centimeter in the direction of force, then work will be 1 अर्ज, right. अब देखते हैं CGS के अंदर के बजाय, not the CGS हम लोगों ने अभी तक देख लिया है. CGS में you are going to get the अर्ग. SI में you are going to get the joule. देखिए SI सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन इंटू मीटर. फोर्स के लिए SI सिस्टम में न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए SI सिस्टम में मीटर. ठीक है, तो इट विल लाइक न्यूटन इंटू मीटर इज गोइंग टू गिव यू द जूल. जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क एंड जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी ऑल्सो. ठीक है, तो जूल जो है वो हमारी यूनिट है SI यूनिट फॉर द वर्क. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एंड बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है अपने पोजीशन से, सो यू आर गोइंग टू गेट 1 जूल ऑफ वर्क, राइट, या फिर 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन ओवर देयर. सो देखिए force equals to 1 newton, displacement is 1 meter and then W is what? 1 into 1, that is going to give you the 1 joule of the work. यहाँ पर भी same direction होगा, like force and displacement are in the same direction. Now see, if a force of 1 newton is applied on a body and displacement in the body is 1 meter in the direction of force, then work will be 1 joule. So these are the 2 units. हम other units भी देखने वाले हैं. ठीक है, there will be 2 more gravitational units. ठीक है, तो आप इसे जो है फटाफट से नोट करें.
ऑलराइट, अब देखिए ये CGS सिस्टम और SI सिस्टम के अंदर हमें अर्ग और जूल ये दो यूनिट्स हमें मिल गई हैं वर्क के लिए। इन दोनों ही यूनिट्स का कनेक्शन क्या है, लेट्स सी दैट relation between joule and erg. So you are going to get 1 joule is equals to 10 की पावर 7 erg. ठीक है, इसे हम डिराइव भी कर सकते हैं कैसे, लेट्स सी दैट। तो देखिए हम लोग ने 1 जूल को क्या लिखा था, दैट इज 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। ठीक है, अब आप ये बात जानते हैं न्यूटन और जो मीटर है इन दोनों का SI के बजाय CGS में जो कन्वर्जन है, SI एंड CGS में कन्वर्जन, हम वो बात जानते हैं। कैसे जानते हैं हम लोग, हम ये बात जानते हैं दैट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये बात तो हम पहले से जानते हैं, राइट। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। ये कन्वर्जन हम लोगों ने फोर्स जब हम पढ़ रहे थे तब देखा था। ठीक है, तो देखिए 1 न्यूटन की जगह पर क्योंकि मुझे अभी इसे अर्ग में बदलना है, दैट मीन्स आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द CGS। सो मुझे न्यूटन के लिए भी CGS लिखना पड़ेगा और मीटर के लिए भी उसका CGS यूनिट लिखना होगा। सो 10 की पावर 5 डाइन इज गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर मीटर की जगह मुझे सेंटीमीटर लाना है, एंड वी नो दैट 1 मीटर के अंदर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। So we are going to say that it is going to be 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप देखिए 10 की पावर 5 डाइन इंटू 100। अब इसको मैं दोनों को ऐड कर सकती हूँ बिकॉज बोथ आर नंबर्स आर बीइंग गेटिंग मल्टीप्लाइड। सो वी कैन से 10 की पावर 5 प्लस 2 इज गोइंग टू गिव यू डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। दिस टर्म डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इज ओनली अर्ज, तो दिस इज गोइंग टू बी 10 की पावर 7 अर्थ। सो यू आर गोइंग टू गेट दैट रिलेशन। ठीक है, आप इस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन इवन कैलकुलेट दैट, बट रिमेंबर करो तो ज़्यादा अच्छा है बिकॉज यहाँ पर आपको जब क्वेश्चंस के अंदर कन्वर्जन में आएगा यू आर गोइंग टू गेट लाइक अर्ग में आपको दिया होगा स्पेसिफिकली, आपको कैलकुलेट करना होगा जूल्स में, तो फिर इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो फर्स्ट यू नीड टू नो दिस रिलेशन सो दैट यू कैन कन्वर्ट दोज इन द क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं अदर यूनिट्स, दोज आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ द वर्क। ठीक है, तो देखिए work is said to have gravitational unit of work if unit gravitational force displaces the body through unit distance in the direction of force। बेसिकली जब ग्रेविटी काम करती है दैट मीन्स ग्रेविटी जब फोर्स लगाती है और उस बॉडी को 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर दे, जो भी बॉडी नीचे फॉल कर रही है बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो अर्थ डायरेक्शन के अर्थ के जो फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो कौन से डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर अर्थ की जो ये ग्रेविटी है वो फोर्स लगाए इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन और बॉडी को डिस्प्लेस कर दे इन दी सेम डायरेक्शन, दैट इज वो नीचे आ रही है, तो अगर ऐसा हो जाता है वो 1 मीटर तक यूनिट डिस्टेंस तक अगर वो क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, दैट इट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, अब इसकी भी दो CGS एंड दी SI सिस्टम में होती हैं। तो CGS में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इज ग्राम वेट सेंटीमीटर। यहां पर ये जो ग्राम वेट आप देख रहे हैं, यहां पर आप जो ग्राम वेट देख रहे हैं, दिस इज द ग्रेविटेशनल CGS यूनिट ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल CGS यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम SI में भी देखेंगे। सो लेट्स लुक अप टू दिस। यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलेंगे यहाँ पे S क्यों लिखा हुआ है, S से भी हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। रिमेंबर दोज 3 इक्वेशन, द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल s से, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू गेट समवेयर S एंड समवेयर D। ठीक है, इट नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब आप देखो 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम वेट मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स दिस इज द फोर्स
दिस इज द डिस्टेंस। फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, 1 ग्राम की बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब 1 ग्राम की बॉडी को ग्रेविटी नीचे खींच रही है और उसने कहाँ तक उसको खींचा है, जहां तक 1 सेंटीमीटर, मतलब बॉडी को 1 सेंटीमीटर तक नीचे लेके आ गई है, वो डिस्प्लेस कर दिया है ग्रेविटी ने, ठीक है। सो यू आर गोइंग टू गेट 981 dyne multiplied by 1 centimeter. When we convert this 1 gram weight into the 981 dyne, you are going to get. So that is why 1 gram weight centimeter is going to give you 981 erg. ठीक है, this is the relation between this gravitational unit and the CGS unit. और दोनों ही CGS में है, ठीक है, but gravitational and the simple CGS. ठीक है, इसी तरीके से इसका जो डेफिनेशन है वो देखो, 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब ग्रेविटी ने 1 ग्राम की बॉडी को 1 सेंटीमीटर तक नीचे पुश कर दिया है, दैट इज द वर्क डन। तब हम बोलेंगे सिर्फ कितना वर्क हुआ, 1 ग्राम वेट सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से एसआई देखो, एसआई में ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है, केजी वेट होती है, केजी वेट मीटर, सो किलोग्राम वेट मीटर, क्योंकि एसआई में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 केजी की बॉडी जो है उसको ग्रेविटी जब नीचे खींचती है और वो 1 मीटर तक उसको खींच कर लेकर आ जाए बॉडी को, तब हम बोलेंगे कि भाई 1 केजी वेट मीटर का वर्क हो चुका है, ठीक है। In that case, you can see 1 kg weight meter is going to give you 1 kg weight, that is force multiplied by 1 meter. इतना फोर्स है, मतलब 1 kg की बॉडी को 1 मीटर तक नीचे लेके आ चुकी है धरती माता, that is gravitational force. So it is going to give you 1 kg weight is going to give you 9.81 Newton multiplied by 1 meter, and Newton meter is joules. So you are going to get 1 kg weight meter as equals to 9.81 joules. ये इनका conversion है into the simple SI unit, ठीक है। देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 kg वेट मीटर, मतलब 1 kg वेट मीटर ऑफ वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 kg वेट डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। मतलब 1 kg की बॉडी को ग्रेविटी नीचे खींचती है 1 मीटर तक, डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू से कि भाई 1 kg वेट मीटर वर्क हो चुका है, ठीक है। फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए। Alright, now let's see the types of work. कितने तरीके के वर्क होते हैं, let's see that. So देखिए यहाँ पर है पहला जो टाइप है, that is the positive work done, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव वर्क डन तब माना जा सकता है, देखिए हमको ये बात पता है कि अगर ये जो फोर्स है अगर ये सेम डायरेक्शन में होता, मतलब दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम वर्क, राइट। अब क्या हो कि ये फोर्स किसी एंगल पर लग जाए, ठीक है, मतलब दैट एंगल इज लेस देन द 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री पर जब ये फोर्स 90 डिग्री हो जाएगा तब तो कितना हो जाएगा, 0 वर्क डन हो जाएगा, राइट, क्योंकि तब कोई वर्क नहीं होने वाला है। इन द डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं, सो यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम वर्क। तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम वर्क है, इस डायरेक्शन में 0 वर्क है, राइट। तो इसका मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है, अगर वो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, तभी आपको पॉजिटिव वर्क मिलेगा, राइट। सो व्हेनेवर दैट एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इन थीटा, और यू कैन से इट इज एक्यूट बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, अगर ऐसा पॉसिबल होता है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। तो देखिए व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, अगर ऐसा पॉसिबल होता है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव वर्क डन। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन हियर, ठीक है, एक्यूट होना चाहिए, दैट इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल होता है, बिकॉज 0 डिग्री पे इधर डायरेक्शन में यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम, ठीक है, और इधर आपको मिलेगा 0 वर्क डन, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0 वर्क डन। सो इस डी यानी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के बीच में अगर कोई भी एंगल होगा तो दैट वुड बी लाइक मैक्सिमम और 0 के बीच का वैल्यू, एंड दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। सो यू आर गोइंग टू गेट ऑल द पॉजिटिव वर्क डन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये जो फोर्स है, इस फोर्स जो कि किसी भी एंगल पे लगता है, लेट इट बी थीटा, ठीक है, दिस इज एक्यूट थीटा,
यहाँ पर ये जो थीटा वर्क डन है ये दो कंपोनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में जाएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल में जाएगा, राइट। अब जो हॉरिजॉन्टल में है वो तो सेम टू सेम डायरेक्शन में हो गया डिस्प्लेसमेंट के, तो ये हमेशा आपको कोई ना कोई वर्क देगा, राइट, बिकॉज सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम वर्क होगा। और जो एफ साइन थीटा है, मतलब जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, तो यू आर गोइंग टू गेट जीरो वर्क डन बाय दिस कंपोनेंट, राइट। सो दैट इज व्हाई ये वाला कंपोनेंट तो कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, बिकॉज देयर विल बी नो वर्क, इट इज परपेंडिकुलर टू दी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो कॉस थीटा वाला है कंपोनेंट, वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम वर्क करेगा। सो व्हेनेवर द थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, जब ऐसा होता है, सो यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव वर्क डन, ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम वर्क डन, ठीक है, व्हेनेवर इट इज टॉकिंग अबाउट एट द 0 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव बिकॉज वन कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ कॉस थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल में है, ये वाला जो कंपोनेंट है इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर जो भी वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में है, डी के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। जबकि जो दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से देयर विल बी नो वर्क डन, राइट, बिकॉज यहाँ पे तो ये तो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, एंड दिस इज द रीजन कि जब भी हम लोग 0 से 90 डिग्री के एंगल की बात करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में देखिए, अगर हम कोई भी वेट को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए, इन लिफ्टिंग अ वेट अपवर्ड बाय अप्लाइंग एन अपवर्ड फोर्स, द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल बी पॉजिटिव। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, लेट्स सी दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू पुल इट अपवर्ड्स, मैं फोर्स लगा रही हूँ ऊपर की तरफ और ये ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ आ रही है, सो द डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, सो दिस इज लाइक द पॉजिटिव वर्क डन, आई हैव डन द पॉजिटिव वर्क, ठीक है। दैट इज द मेन थिंग, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स शुड बी इन द सेम डायरेक्शन और आइदर दे आर बिटवीन दी 0 to 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए, इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी पॉजिटिव। जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बॉडी का, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी बाहर की तरफ हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स भी बाहर की तरफ लग रहा है, बॉडी का स्ट्रेचिंग भी बाहर की तरफ हो रही है, तो ये जो फोर्स वर्क कर रहा है दिस इज पॉजिटिव, राइट। सो यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव वर्क डन व्हेनेवर दे आर इन दी सेम डायरेक्शन और लेस देन दी 90 डिग्री, ऑलराइट। इसी तरीके से आप सेकेंड वर्क देखिए, दैट इज द नेगेटिव वर्क डन। कब होता है नेगेटिव वर्क डन? जब जो एंगल है दैट इज ऑब्ट्यूज, दैट इज बिटवीन 0 to 180, ऑलराइट। तो देखिए, व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, 0 मतलब 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए एंड 180 डिग्री से छोटा, क्योंकि 180 डिग्री पे तो ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली दिस इज द कंडीशन दैट द एंगल हैज टू बी द ऑब्ट्यूज वन, तभी आपको नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। तो देखिए, देन वर्क डन विल बी नेगेटिव बिकॉज वर्क डन बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज एफ कॉस थीटा इज नेगेटिव, एफ डी कॉस थीटा, and the work done by the vertical component will be 0, so net work done will be negative. Now see, देखिए यहाँ पर ये जो थीटा है this is greater than 90 degree, right? So इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा horizontal component and vertical component, तो देखिए इसका जो vertical component होगा f sin theta, वो वापस से perpendicular, so it will again it will be 0, so ये वाला कोई भी वर्क नहीं करेगा, it would be 0 वर्क डन। लेकिन जो कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है, सो इट इज गोइंग टू डू द नेगेटिव वर्क डन। देखिए यहाँ पर जब हम एंगल को कैलकुलेट करेंगे, इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, सो दिस एंगल वुड बी हाउ मच, 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट। इस थीटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द 180, सो दिस एंगल वुड बी 180 डिग्री माइनस थीटा, एंड दैट इज व्हाई सी f cos 180 degree minus theta. So whenever you calculate this, you are going to get minus ka cos theta, and that is why there is minus f cos theta, and it is becoming negative. So you are going to get negative work done whenever the angle is obtuse, that is greater than 90 degree between the 180 degree, right? So whenever this such type of condition occurs, you are going to get negative work done. So basically आप ये बोल सकते हैं कि जब displacement और force, displacement तो इस direction में है, force is directly opposite direction, so you are going to get the angle that is totally opposite, right? So you are going to get the negative work done.
ठीक है, आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। अभी आप इसके एग्जांपल्स देखिए, जब कभी भी स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, आप अगर किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग तो बाहर जाना चाहेगी, स्प्रिंग जो फोर्स लगा रहे आप नहीं, स्प्रिंग जो आपने उसको बाहर से कंप्रेस किया तो डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड्स हो रहा है, लेकिन स्प्रिंग बाहर जाना चाहती है, ठीक है, तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो बाहर की डायरेक्शन में लगाएगी, दैट इज व्हाई दैट इज अपोजिट, सो नेगेटिव फोर्स विल बी देयर बाय द स्प्रिंग, राइट। उसके अलावा आप बोल सकते हैं जब कभी भी आप किसी भी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ये बॉडी, मैं इसे ऊपर उठा रही हूँ, मैं पॉजिटिव वर्क डन कर रही हूँ, राइट, बिकॉज दिस बॉडी इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आई एम अप्लाइंग, राइट। सो अगर ये इस तरीके से ऊपर आ रही है, सो दिस इज द कंडीशन वेयर यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन क्या इस बॉडी का वेट गायब हो गया है? नहीं, तो नहीं हुआ है ना, अभी भी इसके ऊपर जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट, लेकिन वेट तो इसका नीचे लग रहा है, बॉडी इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो दैट वेट इज गोइंग टू डू द नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, वेट इसका नीचे की तरफ है, नीचे ऑलवेज इट इज इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, लेकिन बॉडी तो ऊपर जा रही है, सो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है, सो दीज आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर, सो द डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव, ठीक है, तो इट विल लाइक वर्क डन वुड बी नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए जीरो वर्क डन, यहाँ पर जो जीरो वर्क डन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जीरो वर्क डन किस केस में होता है? जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट इन फोर्स 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो। सी, व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वर्क डन विल बी जीरो। व्हेन फोर्स इज जीरो देन वर्क, आइदर केसेस आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड वर्क डन लिखा है, कितना है वो? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है, दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यू आर गोइंग टू गेट जीरो वर्क। ऑल्सो अगर फोर्स जीरो हो गया हो, फोर्स ही नहीं लग रहा हो, तो भी वर्क डन जीरो है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वर्क डन। सो देयर आर थ्री कंडीशंस वेयर यू आर गोइंग टू गेट जीरो वर्क डन। पहला तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री हो, तब वर्क डन जीरो होगा। सेकेंड केस, जब डिस्प्लेसमेंट तो है बट फोर्स जीरो है, तब हमें जीरो वर्क डन मिलेगा। और तीसरी कंडीशन, जब फोर्स तो है बट जीरो डिस्प्लेसमेंट है, तभी भी हमें वर्क डन जीरो मिलेगा। सो यू आर गोइंग टू गेट थ्री कंडीशंस अंडर विच यू आर गोइंग टू गेट द जीरो वर्क डन। अब जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। If a body is moving in horizontal direction, then work done by the force of gravity will be zero. अगर आप आगे मूव कर रहे हैं, जस्ट लाइक आई एम वॉकिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैं आगे जा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, बट ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल करती है, मेरा वेट हमेशा नीचे की तरफ है, राइट। सो उस वर्क से, उस फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी का फोर्स जो मुझ पे अप्लाई हो रहा है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू गेट जीरो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ अपना फोर्स अप्लाई कर रही है, थीटा इज 90 डिग्री, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी कोई भी वर्क डन नहीं कर पा रही है मुझ पे, अभी जीरो है वो। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, then work done by the centripetal force will be zero because the direction of centripetal force is towards the center of the circle and displacement will be along the tangent. जब कोई भी बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे रोटेट करती है, लेट्स से आप क्या करें, किसी भी थ्रेड पे स्टोन बांधकर उसको गोल गोल घुमाएं, तो स्टोन तो कैसे जा रहा है, स्टोन का मोशन कैसे हो रहा है? हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में, राइट। जो भी स्टोन है वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, देखिए ऐसे डायरेक्शन में मोशन कर रहा है हमेशा, इट इज परपेंडिकुलर। जो थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो तो हमेशा सेंटर की तरफ है, राइट। तो बेसिकली अगर ये पत्थर सेंटर की तरफ नहीं मूव कर रहा है, इट इज गोइंग इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑलवेज, सो दैट इज व्हाई द वर्क डन बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की तरफ है, ये वर्क जो है, फोर्स जो वर्क डन कर रहा है, दैट इज जीरो, बिकॉज ये स्टोन को अपनी तरफ नहीं लेके आ पा रहा, सेंटर की तरफ नहीं लेके आ पा रहा, जो स्टोन है वो तो परपेंडिकुलरली ही मूव कर रहा है हर एक पॉइंट पर,
ठीक है, दैट इज वाई सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे 0 वर्क डन कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट अगर कोई अपना नोट रिवाइज कर रहा है, ठीक है, आराम से बैठ के अपने नोट्स रिवाइज कर रहा है, पढ़ रहा है, रीडिंग अ बुक, राइटिंग, ठीक है, तो ही इज नॉट इवन डिस्प्लेसिंग, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, राइट। सो विदाउट मूविंग हिज लिम्स इज डूइंग नो फिजिकल वर्क, ठीक है, कोई वर्क नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप मेडिटेटिंग करेंगे, एक ही जगह बैठ के बहुत देर तक मेडिटेटिंग कर रहे हैं, आप मेंटली बहुत इन्वॉल्व हैं, बट इफ वी कॉल अबाउट दिस वर्क, तो नो वर्क इज गोइंग टू बी डन, ठीक है। सो दिस इज नो वर्क. A foolish labor trying to displace a building has done no work though he may spend the whole day. अगर कोई किसी बिल्डिंग को हिलाने की कोशिश कर रहा है, किसी वॉल को धक्का मारने की कोशिश कर रहा है, सो बेसिकली इट इज नो वर्क, सिर्फ अपना एनर्जी ही वेस्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। सो नाउ यू नो द कंसेप्ट ऑफ वर्क इन दी, यू कैन से इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, राइट। सो देखते हैं अब एरिया अंडर द डिस्प्लेसमेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व. सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, आपको कभी भी ऐसा ग्राफ मिल जाए, आप उससे फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आपको एक चीज रिमेंबर करनी होगी एंड देन यू आर गोइंग टू गेट इट. देखिए एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स द वर्क डन. अगर आपको कभी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे दिया जाए तो अगर आप उसके अंडर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो मतलब आपने फोर्स वर्क कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, नॉट द फोर्स. फोर्स देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर x डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है fx, ठीक है, x डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में हो रहा है, ग्राफ प्लॉट किया गया है. अगर आप इसके अंडर का जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको मिलेगा पॉजिटिव वर्क, ठीक है. वहीं पर आप देखिए फोर्स y डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो कर्व है वो नेगेटिव में जा रहा है, मतलब y एक्सिस नेगेटिव y में जा रहा है. सो दिस वर्क जो कि इस y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये वाला जो वर्क है दैट इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव वर्क, ठीक है. तो अगर पॉजिटिव एक्सिस के नीचे, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे अगर आपको कोई कर्व मिल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव साइड में, सो यू आर गोइंग टू गेट द नेगेटिव वर्क. ऊपर अगर मिलता है तो पॉजिटिव वर्क. इसी तरीके से देखिए z डायरेक्शन में फोर्स है, z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, सेम डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है. देखिए द वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज पर द एरिया अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली. अगर कर्व ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ है, राइट, तो यू आर गोइंग टू गेट द पॉजिटिव वर्क डन. अगर जो आपका कर्व है, ग्राफ है, वो नीचे की तरफ है, बिलो द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सो यू आर गोइंग टू गेट द नेगेटिव वर्क डन, ठीक है. तो आप इसे फटाफट से नोट कर लें. ऑलराइट, सो देखिए आज हमने पूरा वर्क डन के बारे में पढ़ा है, राइट, दैट इज द मेन थिंग फॉर टुडे इटसेल्फ. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड देन वी विल बी मूविंग अप टू द एनर्जी, राइट. सो लेट्स एंड द लेक्चर हियर. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that it will remain notified for the upcoming video. Thank you so much.